ہوتا. شیم آن یو کہنے سے کچھ نہیں پڑے گا فرق, اس لیے کہ سندھ میں گیم آن ہے. شیم آن یو سے کچھ نہیں ہوگا. سندھ میں گیم آن ہے, سندھ میں کرپشن کی گیم آن ہے, سندھ میں ناانصافی کی گیم آن ہے, سندھ میں دادا گیری کی گیم آن ہے, سندھ میں جعلی اکاؤنٹ کی گیم آن ہے, سندھ میں ڈیسکوں کی گیم آن ہے, سندھ میں دوائیوں کی چوری کی گیم آن ہے, سندھ میں کچرا کنڈی بنانے کی گیم آن ہے, سندھ میں شہر کو گٹرستان بنانے کی گیم آن ہے, سندھ میں بھتہ خوری کی گیم آن ہے, سندھ میں ڈاکو راج کی گیم آن ہے. تو جب ان کی ساری گیم آن ہے تو پھر شیم آن یو کہنے سے ان کو فرق نہیں پڑے گا. اور اس وقت ایک بہت بڑا ایشو 44 ارب کی کرپشن کا نوٹس سپریم کورٹ نے لیا تھا, اور اس کی تفصیل یہ بتائیں گے. اور اس کے بعد اعجاز جکرانی اور پیپلز پارٹی کی سندھ پولیس کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کی کلنگ سٹارٹ کرا دی. انہوں نے پولیس کے ذریعے کلنگ سٹارٹ کرا دی ہے. ایک بڑی خوفناک چیز آگے بتائی, اس لیے ہنگامی طور پر میں نے پریس کانفرنس رکھی ہے. پہلے تو جب محمد میاں سومرو صاحب مطلب نیب کا چھاپا پڑا, آپ نے دیکھا کہ اعجاز جکرانی نے نیب پہ حملہ کروا دیا, اور اس کے بعد جکرانی ڈاکو نے جنگل سے میسج دیا کہ وہ سومرا تیار ہو جائے. یہ جنگل کا قانون ہے, اس لیے میں کہتا ہوں ڈاکو راج کی گیم آن ہے. اور اس کے بعد ادھر ہی نہیں رکے, اس کے بعد جنہوں نے ہمارے پی ٹی آئی کے سپورٹرز, ان کو انہوں نے پولیس کو ذریعے, پولیس کرائے کے قاتل بن چکی ہے. ایس ایس پی جیکب آباد کرائے کا قاتل بن چکا ہے, کیونکہ جیکب آباد وہ ضلع ہے جو سندھ کا سب سے کرپٹ ترین بندہ ہوتا ہے. وہ وہاں جاتا ہے, وہاں اسمگلنگ ہوتی ہے, وہاں تیل کا کام ہوتا ہے, وہاں منشیات کا کام ہوتا ہے. اور جیکب آباد کا ایس ایس پی غلام تو تھا ہی, آج کل پیسے لے کر ان کی غلامی میں وہ ہمارے ورکرز کی ٹارگیٹ کلنگ کر رہا ہے. اس باقیہ تفصیل, کچھ کرپشن کی تفصیلات دی ملیہ سومرو بتائیں گی, اس کے بعد مولانا سومرو صاحب بتائیں گے. انشاءاللہ میں قریب جیکب آباد جاؤں گا, اور چوروں کو, لٹیروں کو میں انشاءاللہ جیکب آباد جا کر بے نقاب کروں گا. ہماری بہن بتائیں گی, اس کے بعد یہ نوجوان بتائیں گے. ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے سپریم کورٹ میں ریکویسٹ کی تھی کہ میرے علاقے جیکب آباد میں 44 ارب کا فنڈ آیا تھا, جو کہ خرد برد ہو گیا, وہاں نظر نہیں آ رہا. 30 ارب تو صرف ایجوکیشن کا SERP سرپ پروگرام کے لیے آیا تھا. تو اس کا نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے انکوائری کی, اور انہوں نے بتایا کہ واقعی آن گراؤنڈ فل پیمنٹ ہو چکی ہے, اور چیز کوئی نظر نہیں آ رہی. کہیں اکثر تو 0% کام ہوا ہے, کہیں 2%, کہیں 10, کہیں 20. لہٰذا سپریم کورٹ نے پھر اس کو ورسٹ فارم آف کرپشن کہا, اور نیب کو آرڈر کیا کہ آپ 3 مہینے میں اس کی انکوائری کر کے تو رپورٹ جمع کرائیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ 3 سال ہونے والے ہیں, اور نیب نے ابھی تک بڑی سستروی سے چل رہی ہے. اور جو 2-3 انکوائریز انہوں نے کی, اس میں اعجاز جکرانی صاحب بیل پہ بیل, بیل پہ بیل, کوئی 45 بیلیں تو وہ سندھ ہائی کورٹ سے, سکھت سے, لاڑکانہ سے, بہاولپور سے حاصل کرتے ہیں. جب ایک دفعہ ان کی بیل کینسل ہوئی تو نیب ان کو ریسٹ کرنے گئی, تو انہوں نے نیب کے اوپر حملہ کیا, نیب کے اوپر تھوکا, ان کی گاڑی توڑی, ان کو گالیاں دی, اور ان کو ٹھڈے مارے. اور جب کیس داخل کرنے کا وقت آیا, نیب نے ان کو کہا کہ کیس داخل کرو, تو ایس ایس پی صاحب نے صاف جواب دے دیا کہ میں کیس داخل نہیں کروں گا. اور اس نے پھر ایونچولی اپنی مدعیت میں ایک پیار محبت بھرا خط دے دیا FIR کے طور پہ پولیس کو ہی. پھر ججز نے بھی کافی ڈانٹا کہ جو مین اکیوز تھے اعجاز جکرانی کا بیٹا, جس نے کہ اوپنلی ہمیں بھی تھریٹ کیا اور فوج کو تھریٹ کیا, جس کا ہمیں بہت دکھ ہے. فوج جو بارڈرز پہ ہمارے لیے جان دیتی ہے, یہ 2 ٹکے کے چور ان کے خلاف بولے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. بالکل ہمیں بے شک گالیاں دیں, اسے دی, میں کورٹ گئی ہوں, لیکن اگر وہ ہماری فوج کے بارے میں کچھ کہیں گے تو ہم ان کی اینٹ سے بجا دیں گے. اور ساری پبلک ہمارے ساتھ ہے فوج کے معاملے میں. باقی یہ ہے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کیا تو جائیں جا کے آپ کو بتا دیں, ادھر ادھر کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں اور ڈیلے کراتے پھر رہے ہیں, اور پھر لوگوں کو کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو تھریٹ کر رہے ہیں, اور لوگوں کے گھروں کے باہر جا کے وہ کر رہے ہیں, آپ دھرنے دے رہے ہیں. اگر آپ نے واقعی کچھ نہیں کیا تو جا کے شرافت سے بتا دیں جی میں تو بہت نیک ہوں, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, میں نے تو بڑی ترقی کے کام کیے ہیں. اب میں مولا بخش کے ہینڈ اوور کرتی ہوں. مولانا بخش صاحب جو بتائیں گے بڑا خوفناک سا. جی السلام علیکم. میں عرض کرتا چلوں, یہ اپنا 22 مئی کو جیکب آباد میں, اس سے پہلے ایس ایس پی شمائل ریاض ملک وہاں پوسٹ ہو گئے تھے, جو کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے.
क्योंकि जखरानी खानदान, एजाज जखरानी, मुमताज जखरानी और एजाज का जो सौतेला भाई है खालिद, स्मगलर जो है जेकाबाद का मशहूर तरीन, ये सारों ने एसएसपी को यहाँ पे पोस्ट कराया, जिसमें सिंध पुलिस खुद मुलविस है उसकी वहाँ पोस्टिंग कराने में। वो पोस्टिंग जेकाबाद इलाके में बता चलो, वो बॉर्डर एरिया है, बलूचिस्तान से लगता है, सारा स्मगल्ड माल वहां से आता है, पान पराग वहां से आता है, ईरानी डीजल वहां से आता है, चर्च मंशियात सारा काम वहां से आता है। वहां पे 2 चौकी है, उमरानी लाड़ो, और दूसरी जो चौकी है वो है अपना छम्बे शाह वाली। ये दोनों चेक पोस्ट पे जखरानियों के बंदे लगे होते हैं। एसएसपी ने जो पुलिस के एहलकार लगाए वो भी उनके ही बंदे लगाए, और वहां से दबा के स्मगलिंग चल रही है, पैसा आ रहा है, मंशात आ रहा है, हर किस्म का 2 नंबर धंधा वहां से आ रहा है। 22 मई को 2 कत्ल हुए थे। अब जेकाबाद में 15 पुलिस हेल्पलाइन का दफ्तर है, उसके बाद कौन डिकेटी करता है? मुझे पता है क्या डिकेट इतने दिलेर हो गए कि पुलिस के 15 हेल्पलाइन के बाहर डिकेटी करेंगे। तो 3 वहां पे एहलकार थे, जिसमें से 2 जो उनको फेक एनकाउंटर में मार दिया गया, एक बंदा बच गया, उसको पुलिस ने हिरासा किया और बाद में गायब कर दिया। वो आज तक गायब है, उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे हैं। कोई एफआईआर आज तक रजिस्टर नहीं हुई है 22 मई से लेकर अभी तक। और आज जो है अपना ये तो काफी हिमायती तरीके के साथ, ये हमारे हिमायती थे और हमारे वोटर्स थे, इनने पोलिंग पे हमारे लिए काम किया था। इनका जो भाई है राजन जखरानी, वो हमारे साथ बैठा हुआ है, इनमें से एक जो बंदा मारा गया, हमारी यूसी नावड़ा का सदर है। इनके सरदार और वडेरों ने इनके साथ इंतकाम लेना था, एसएसपी को वहां पे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। 3 एहलकार पुलिस के और इसमें मुलविस थे। और जो 22 मई को मर्डर हुआ है, वहां पे ना एफआईआर हुई है, जो लोग वहां पे मुलविस थे पुलिस के, उनको बचा दिया गया, उनमें से एक बंदे को इन्वेस्टिगेशन का हेड बना दिया गया है। और बड़ी अफसोस की बात है, जब मैंने इनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सोशल मीडिया ने हाईलाइट किया है, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि बाद में भी एसएसपी ने नोटिस नहीं लिया। तो जो बंदा मेरे साथ बैठा उसको इलीगली विदाउट ड्यू प्रोसीजर उसको पुलिस से डिसमिस कर दिया कांस्टेबल से। और फिर 22 तारीख के बाद वाले वाक्य को आज तक जो है कोर्ट में वो चल रहे हैं, और कोई इसमें एसएसपी मुलविस, मतलब जो लोग मुलविस हैं उन पर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। उसके अलावा 8 और वाक्य हुए हैं, उनको टांग पे गोली मार दी गई है, एक ही जगह पे टांग पे गोली मार दी गई है। न्यूज ने रिपोर्ट किया, कोई आईजी ने, कोई डीआईजी ने, किसी चीज का नोटिस नहीं दिया है। तो इस तरह अगर इंतकाम ही कराना है लोगों के साथ, तो मैं किससे अपील करूं? मैं तो चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान से अपील करता हूँ काइंडली इस चीज पे नोटिस लिया जाए। ये उनका मामू और चाचा, और ये एक जो राजन गुलवानी इनका भाई मारा गया, 2 वाकयात हुए इस तरह के, 8 और वाकयात हुए हाफ राय के। और आज भी जो बड़ी अफसोस की बात है, मैं पता चला कि एसएसपी उन लोगों को जिसको पकड़ा गया, मुजीबर रहमान जखरानी को, उसको जेल में टॉर्चर कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि तुम इस केस से जो हाथ उठा लो। तो जो पीटीआई को वोट देगा उसके खिलाफ पुलिस को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? तो काइंडली चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है कि आप नोटिस लें इस बात की, और हलीम साहब आप काइंडली इसको असेंबली में उठाइएगा। जी राजन, आप थोड़ा जल्दी से बता दो किसका कत्ल हुआ, बता दो आप भी आ जाओ, किसका नाम बताइए अपना। उस भाई का नाम है, मैं अपना नाम बता दो, राजन खान जफरानी सिंह। रजा खान। राजन खान राजन खान हाँ, बता दो आपके कौन कत्ल हुआ? मोहम्मद शेर मेरा भाई, इसमें कत्ल हुआ है। और इसका बख्तियार, ये शेरवानी जखरानी है, मैं गुलवानी जखरानी है। शेर जखरानी का तो मैं बताना चाह रहा था कि हमारे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, और बस ठीक है, इनके तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने पे इनके भाइयों को कत्ल किया। पुलिस ने, बस एसएसपी जैकबाबाद ने एज अ टारगेट किलर, पेड किराए के कातिल के तौर पे उसने तहरीक इंसाफ के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। नैब वाले मामले के अंदर नहीं हुआ, जो हम कहते हैं कि पुलिस इनकी गुलाम बन चुकी है, उसका सबूत है। मोहम्मद मियां सुमरो साहब को एजाज जखरानी सिंध हुकूमत, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर, सिंध हुकूमत की मदद से धमकाना चाह रहा है। मोहम्मद मियां सुमरो साहब को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। इससे बड़ा नहीं हो सकता कि एक वफाकी वजीर को डाकू कच्चे में बैठकर कत्ल की धमकियां दे, और दूसरी तरफ पुलिस की वर्दी में बैठा हुआ एसएसपी उनके लोगों को कत्ल करे। इससे ज्यादा बदअमनी नहीं हो सकती। तो मैं भी कहूंगा, शेम ऑन यू सिंध गवर्नमेंट। कोई सवाल तो पूछ सकते हैं। अच्छा हलीम साहब, आज जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है नस्ला टावर के हवाले से भी, इसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि नस्ला टावर का वाकया सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं उस पर क्या कहूं, फैसला है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये देखा जाए कि नस्ला टावर को लीज किसने करके दी। नस्ला टावर की जो सोसाइटी है, अगर उसने लीज करके दी, तो सोसाइटीज, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का वजीर कौन था, सेक्रेटरी कौन था, रजिस्ट्रार कौन था? कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंध गवर्नमेंट। उसके बाद नाले की जमीन पे अगर कब्जा हुआ
तो वो किसने करा के दिया? सिंध हुकूमत। ये जो भी बिल्डर था, अव्वल तो ये बिल्डर साहब और सिंध के डिपार्टमेंट्स, ये सब इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं कि जो बेनिफिशरीज हैं, सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करता हूं कि जो इसके अंदर जिन्होंने फ्लैट्स खरीदे, एनओसी फॉर सेल था, फ्लैट खरीदे, जगह का इश्तहार था, फ्लैट खरीदे, अंदर रहने वाले जो मकीन हैं वो इनोसेंट हैं, वो परचेजर्स हैं, इन्हीं लोगों से रिकवर करके पैसे, इस बिल्डर से, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों से, केएमसी के लोगों से, एसबीए से, केडीए से, जो जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है उसको, नैब को उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और उनसे पैसे रिकवर करके इन गरीब बेनिफिशरीज को दिए जाने चाहिए। जो फ्लैटों के अंदर रहने वाले लोग हैं उनका कसूर नहीं है, उनको तो जब एनओसी फॉर सेल मिली तो हुआ। मैं कहना चाहता हूं नैब फौरी तौर पे एक्शन ले, इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करे, जिसके जो एसबी में था, जो कोऑपरेटिव में था, जो केएमसी में था, जिनकी क्राइवेंस से यहाँ ये टावर बना और इन मासूम लोगों को बेचा गया। मेरी हमदर्दियां फ्लैट ओनर्स के साथ हैं, लेकिन मेरी कोई हमदर्दी उस बिल्डर, उस एसबीसीए, केएमसी, कोऑपरेटिव किसी के साथ नहीं। हनीफ साहब, जैसे आपने कहा कि पुलिस उनके साथ मिली हुई है, तो क्या पुलिस यानी आईजी साहब, आईजी को तब्दील करने का कोई बना आप सिफारिश करेंगे? दूसरा है कि सिंध हुकूमत ने मुमताज शाह चीफ सेक्रेटरी साहब या शरीफ चीफ सेक्रेटरी, उसको भी हटाने का कोई कहा है, ये भी बातें चल रही हैं। देखिए, आपने कहा कि पुलिस उनके साथ मिली है, वफाक आईजी के लिए क्या कर सकती है? 18वीं तरमीम और उसके बाद जो इन्होंने बनाया हुआ है कि जी सिंध हुकूमत एतराज करेगी, मतलब आईजी और चीफ सेक्रेटरी को विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ सिंध गवर्नमेंट नहीं हटाया जा सकता। और सिंध हुकूमत के तो आईजी साहब तो लगता है गुल्ले पालक है उनके। आईजी साहब तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बदनुमा धब्बा है ये पुलिस के डिपार्टमेंट के लिए, ये वाले आईजी सिंध बदनुमा धब्बा करार दी। जैसे हमारा इससे पहले एडी ख्वाजा साहब को हम अपना समझते हैं कि उन्होंने इज्जत बढ़ाई पुलिस की, करीम इमाम साहब ने पुलिस की इज्जत बढ़ाई थी। इसी वर्दी में बैठे हुए लोग हैं, वो बहुत सारे अच्छे अफसरान हैं जो कि जिन्होंने शहादतें दी हैं, वो भी हमारा इज्जत है। लेकिन मुश्ताक महर जैसे लोग और शुमाइल रियाज मलिक, दोबारा बता दो, मैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से भी कहता हूँ, पुलिस के आला अफसरान से भी कहता हूँ कि हमने किराए के कातिल बड़े देखे, लेकिन पुलिस की वर्दी में किराए का कातिल एसएसपी जैकबाबाद जो कि मंशियात फरोशी कर रहा है, जो टारगेट किलिंग कर रहा है, हर किरण तो आईजी साहब सिंध हुकूमत के इस वक्त ब्लू आइड है और मैं नहीं समझता। लेकिन अब यह है कि आईजी चीफ सेक्रेटरी से हटाने से कुछ नहीं होगा, इंशाअल्लाह बड़ी बुराई से जान छुड़ाना पड़ेगी, जिनके लिए चीफ जस्टिस ने भी कह दिया शेम ऑन यू सिंध हुकूमत। मैं कहता हूँ गेम ऑन है सिंध हुकूमत। थैंक यू सर।